Good morning, sir, and a very warm welcome to today's roundtable discussion. We have a very special discussion lined up today on turning scores into success stories. So every year, lakhs of students appear for board exams and for competitive entrance exams like JEE. And but what really matters is what students do with their opportunities, how they grow, how they build relevant skills, confidence, and how institutes like IIST help shape a strong personal story for them that goes beyond just entrance exam and beyond marks. So IIST as an institute that has helped turn many average scores into outstanding success stories. So, sir, thank you for joining us today and for playing a key role in making these stories come alive for young minds. We are excited to hear your thoughts on how IIST supports students not just to study but to exceed and to find their path in a fast-changing world. So without much ado, I would like to dive into few questions and then we can open up the round for others to share their thoughts. So you have had a distinguished career in the civil services and now lead an academic institution. What inspired you to move into education? First of all, I would like to thank and place on record my sincere thanks and gratitude to Times of India to initiate this discussion, which is very vital and important, keeping in view of very changed circumstances in education arena. Right. Yeah, of course, I was bureaucrat of 1983 batch. But before that, I was assistant professor. I started my career in 1975 as assistant professor when I was 20 years of age. So you can say that was my first love. Okay. So that love must continue. Definitely. Secondly, I thought after retirement that nothing like education. If you can change the thinking pattern of the young generation, you can contribute to the society, to the nation in a big way. Because as we said, our tagline, if you see, we have written, Nahi Gyanen Sadarsham Pavitra Mahi Vidyate. There is nothing holy than the knowledge. और हमारे कई जगह कहा भी गया है, सा विद्या या विमुक्तये. सा विद्या या विमुक्तये. There is education which liberates. So, education can make a very significant can play a very significant role in one's character building. Because there is a difference, that is why we are emphasizing that our teacher should become guru. Because there is a difference between teacher and guru. So that is what I am emphasizing here and we are practicing it. Guru means teacher means quantitative expansion of the personality. And guru means qualitative expansion of the personality. गुरु दो शब्दों से मिलके बना है. गु माने अंधकार और रू माने दूर करने वाला. तो अंधकार को जो दूर करे वो गुरु. तो अगर हम ऐसी इसलिए मैं शिक्षा में आया कि आफ्टर रिटायरमेंट इफ वी कैन कंट्रीब्यूट एंड नथिंग कैन बी बेटर देन एजुकेशन. All right, sir. That's very inspiring, sir. Thank you for sharing. So for now coming to what's something that is very valuable to students and parents. So for a student or a parent who is just hearing about IIST, what makes this institute different from other engineering colleges? And could you tell us about some unique initiatives, SSY programs that truly embody IIST's holistic commitment? नहीं, there are two, Paravidya and Aparavidya. हमारे यहाँ कहा जाता है, दो तरह से किया जाता है. Knowledge of the God Almighty and knowledge of the Word. So हम यहाँ स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं दोनों वर्ड्स के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, इनर वर्ड और आउटर वर्ड. जब मैं इनर वर्ड की बात करता हूँ तो इसमें फिजिकल भी आता है, मेंटल भी आता है और स्पिरिचुअल भी आता है. आज हमारा जो यंग जनरेशन है वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और इथिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए. तो ये तो हो गया इनर वर्ड. आज बहुत देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन यंग मैन्स माइंड, देयर सो मेनी कंफ्यूजन्स. सो हमें उसको भी दूर करना है. सेकेंडली, आउटर वर्ल्ड के चैलेंजेस क्या हैं कि आज लोग कहते हैं कि हम इंडस्ट्री 5.0 के लिए तैयार नहीं है. वी आर नॉट इंडस्ट्री रेडी. तो दैट इज वाई वी स्टार्टेड a scheme called Samagra Samutkarsh Yojana. That is holistic development of the student. So usme what is the first goal in that? To make our students ready for Industry 5.0. So what is Industry 5.0? Where
students should work or can work in future with machines, क्योंकि अब AI powered रोबो आएंगे। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपकी जगह एक रोबो बैठा है मुझसे सवाल पूछे, बट आर यू रियली ह्यूमन बीइंग? तो ये दैट इज पॉसिबल। तो AI पावर्ड रोबो क्वेश्चंस पूछेगा और AI पावर्ड रोबो भी जवाब भी देगा। तो वी हैव टू मेक अवर स्टूडेंट्स रेडी फॉर दैट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हर सेमेस्टर में तीनों कॉलेज में, चाहे IST हो, IP, IMR हो, वहाँ पर हम स्किल इम्प्रूवमेंट ग्रुप शुरू करते हैं। 40 आवर्स का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी सिलेबस। और वो जो SIGs होती हैं वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर क्या स्पेशलाइजेशन होता है डिफरेंट तरीके का, जो सिलेबस में नहीं। तो आप जब पूरे 8 सेमेस्टर तक वो करोगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे। तो वो दैट इज़ वन ऑफ आवर USP। सेकंड, हम उनको इंग्लिश और एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस 4 साल तक देते हैं। उसका रीज़न यह है कि आगे चल के जो इंटरव्यू फेस करेंगे तब भी वो अपने को कम्युनिकेट कर पाएंगे बेटर। साथ ही अगर वो BTech या B फार्मा या MBA के बाद हायर एग्जाम्स में बैठते हैं, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो या फिर वो गेट हो MS के लिए या GRE हो, तो वहाँ भी इंग्लिश और एप्टीट्यूड आएगा। तो अगर 4 सालों में वो लगातार थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आफ्टर 4 years उनका एक अच्छा बेस बन जाएगा। But you cannot make 6 packs in a gym in one day. So you have to do regular exercise. So that is why we initiated this scheme called SSY. फिर हम इसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बच्चों से कराते हैं। अब जहाँ तक होलिस्टिक डेवलपमेंट का सवाल है तो दिस इज वन पार्ट वेयर वी आर प्रिपेयरिंग देम टू फेस द चैलेंजेस ऑफ आउटर वर्ल्ड। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स पर वो आगे कवर होगा। स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनका नेचर से परिचय कराना है, उनकी सोशल जिम्मेदारी को उनको बताना है। तो ये पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो वी विल कवर इट इन लेटर ऑन, बट दैट इज आवर USP, दैट इज समग्र समुत्कर्ष योजना, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक्चुअली बुकिश नॉलेज कुछ हद तक आपके साथ जी सपोर्ट करता है, बट आफ्टर दैट इट्स द होलिस्टिक एंड द ओवरऑल। बिकॉज आगे चल के अभी आप देखेंगे कि अभी आपका जो आगे फ्यूचर है वो इन्हीं सब का है कि यू शुड बी सॉफ्ट स्किल्स आपकी बहुत बढ़े। And sir, getting to the next question, what kind of aspiring engineer will truly excel and grow at IST, and what essential qualities do you nurture to help student unleash their full potential here? देखिए, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे यहाँ एक चीज़ जो मिसिंग है वो है क्यूरियोसिटी। हम क्यूरियोसिटी को किल कर देते हैं, जो कभी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वी आर प्रमोटिंग दैट यू शुड आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज एक बात आप समझें कि जब जब इस देश में क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए हैं तब तक महान ग्रंथों का जन्म हुआ है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे तो गीता बनी। जब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से प्रश्न पूछा तो अष्टावक्र गीता बनी। जब भगवान राम ने वशिष्ठ से क्वेश्चन पूछे, महर्षि वशिष्ठ से, तो योग वशिष्ठ बनी। जब नचिकेता ने यमराज से क्वेश्चंस पूछे तो कठोपनिषद का जन्म हुआ। तो क्वेश्चनिंग जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम प्रमोट करते हैं। तो इसलिए दैट इज वन थिंग, भाई क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे 3 इंस्टीट्यूशन हैं, तो उसमें हम ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उनकी जो AI लिटरेसी बढ़े। देखिए AI के भी कई लेवल हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा आ रहा है तो उसको इस तरह का हम समझा रहे हैं कि चाहे तुम फार्मेसी में हो, चाहे MBA में हो या मैकेनिकल और सिविल में हो, तुम्हारा कोर एरिया कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो अभी तुमको AI लिटरेसी सीखना है। AI फ्लुएंसी अलग चीज़ हो गई, पर AI लिटरेसी उससे नीचे की चीज़। बेसिक AI सबको आना होगा आगे, क्योंकि हम आगे देखेंगे, जो मैं आपसे बात करूँगा कि क्या होने वाला है। तो AI लिटरेसी सबको आनी चाहिए, चाहे वो B फार्मा भी करो और MBA भी करें। और AI फ्लुएंसी उनको आए जो AI में या CS में आगे जा रहे हैं। और उसकी फिर डीप, उसका 3rd लेयर हो सकती है डीपर नॉलेज ऑफ AI, वो स्पेशलाइज हो सकता है। तो ये हम बच्चों को समझा रहे हैं कि भाई आपको इस तरह का एक मोटिव होना चाहिए। साथ ही साथ दे शुड बी रेडी टू डू हार्ड वर्क एंड बी रेडी टू गो टू अनकंफर्टेबल जोन, क्योंकि ये जो हमारा माइंड है ये इस तरह से डिज़ाइन
किया हुआ है कि हमको हमेशा कंफर्ट जोन में रखता है, तो कभी अनकंफर्टेबल काम नहीं करने देता। तो यहाँ पर जो बच्चा आ रहा है उसके अंदर हम तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं कि वो अनकंफर्टेबल जोन में जाए, ट्रैकिंग पे जाए, स्पोर्ट्स में आगे आए, फिर उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि ही शुड बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। क्योंकि आजकल जो आगे चल करके हमें जो फेस करना पड़ेगा वो हम बात करेंगे कि जब एआई पावर्ड रोबोट आ जाएंगे तो आप उनको चैलेंजेस कैसे एक्सेप्ट करोगे। तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़नी चाहिए, साथ ही आपकी एनालिटिकल पावर बढ़नी चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स आप सोचें। तो उसके लिए हम यहाँ पर हैकाथॉन कराते हैं 24 आवर्स का, जहाँ हमारे बच्चे 24 आवर्स तक सोचते हैं, नए ऐप बनाते हैं। तो ये इन सब को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द जो नॉर्मल सिलेबस है। तो इस तरह का जो बच्चा आता है, जो इस माइंडसेट से आता है, फिर उसकी ग्रोथ बहुत, देखिए उनकी थिंकिंग को चेंज करना है, दौड़ तो वो खुद लेंगे। तो हाउ टू मोटिवेट देम एंड हाउ टू गिव देम ए करेक्ट पाथ, दैट वी आर सर, ट्राइंग। एक जागरूकता, जी। एक क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिव माइंड, क्योंकि आगे चल के जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रहे हैं उसमें उनको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। मतलब ये नहीं हो सकता है कि आज आप एक स्किल को सीख के बैठ जाएं। नो, इट इज सच ए चेंजिंग एंड डायनेमिक वर्ल्ड कि दे हैव टू बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। Otherwise you tend to become handicapped if you don't upgrade yourself. नहीं, आप ऑब्सोलीट हो जाए। बिल्कुल, वो खत्म हो गया जमाने जब हमने एक पर्टिकुलर स्किल को सीखा था और वो उससे काम चल रहा है। आजकल डे टू डे बेसिस पर स्किल्स चेंज हो रही हैं। तो ये तो तय है कि भाई आपको चाहे आप कहीं से भी डिग्री लें, you will not get good placement unless you are not very good in your skills. Skill enhancement is the key. So looking ahead, which academic specializations or departments at IST do you believe hold the most promise for students aiming for cutting edge sectors? देखिए, जो अब फ्यूचर में जो भी जॉब्स आ रहे हैं उसमें हमने उन्हीं की ब्रांचेस खोली। जैसे हमने डाटा साइंस खोला है क्योंकि आगे चल के डाटा साइंटिस्ट की बहुत डिमांड है। AI/ML का हमारा एक ब्रांच है क्योंकि AI/ML इंजीनियर्स की और AI एक्सपर्ट्स की बहुत ज़रूरत है आगे चल के। देखिए, AI आपके जॉब नहीं लेगा, AI जानने वाला आपके जॉब लेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि AI और ML एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसको डील करें। इसके अलावा आप देख रहे हो इतना डाटा है कि साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भी एक फील्ड होगा जहाँ पे जॉब मिल सकता है। हमारे यहाँ जैसे B फार्मा है और M फार्मा है और फॉर्म D है जो 6 इयर्स का कोर्स है। इसमें बहुत विदेशों में इसके चांसेस हैं कि इनको जॉब मिले, क्योंकि इसमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, इन 4 सालों में आपको हॉस्पिटल में जा करके 100-200 घंटे की इंटर्नशिप करनी है। और 6th ईयर में तो पूरे साल ही हॉस्पिटल में रहना है। तो हमें यहाँ के बहुत अच्छे फेमस हॉस्पिटल के साथ हमारा टाई अप है, चौइथराम हॉस्पिटल के साथ, जहाँ हमारे बच्चे वहाँ जाके ट्रेनिंग करेंगे। तो ये हमारा एक नया कोर्स है जो शायद मध्य प्रदेश में 2-3 जगह ही है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है AI का। मतलब आप समझ लें कि AI का अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर प्रयोग होने वाला है तो वह हेल्थ केयर सेक्टर में होना है और बायोटेक्नोलॉजी में होने वाला है। मतलब ये कहा जाता है कि अगर वर्ल्ड वार वगैरह नहीं होती है तो 2045 के बाद तो कोई मरेगा ही नहीं। देयर विल बी सो मच एडवांसमेंट इन मेडिकल फील्ड। इसके अलावा आपको ध्यान हो कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, इस पर बहुत काम होने वाला है, क्योंकि आज जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रही है तो हमें उस पर भी क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर इंजीनियर्स चाहिए जो एनवायरनमेंट को स्टडी कर सकें। आप उनका नाम हो सकता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर दें, कुछ भी करें। एग्रीटेक में ड्रोन और आपके रोबोट्स काम कर रहे हैं, तो एग्रीटेक में भी बहुत रिवोल्यूशन होना है। इसी के साथ आप सोच सकते हो कि फिनटेक में आ सकते हैं जॉब बहुत ज़्यादा, उसमें हमें बढ़ावा देना। और एक काम और है जो हम बच्चों को बता रहे हैं कि जैसे ये हम सबको सोचना है कि जहाँ पर रिपीटेटिव काम है और बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमें AI दूसरे तरह से पढ़ाना हो। जहाँ पर
अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो बड़ा अच्छा लगा, उसमें था कि उसमें अगर रिपीटेटिव काम के साथ साथ थोड़ी नॉलेज चाहिए तो उनका एआई का लेवल दूसरा होगा। अगर रिपीटेटिव काम के साथ हाई स्किल चाहिए, नॉलेज ऑफ एआई, तो उनका लेवल अलग होगा। तो इस तरह से हम लोगों को जॉब में डिफरेंशिएट करना है कि किसको कितना इनपुट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दिया जाए। जैसे रोबोट इंजीनियर आ सकते हैं, हमने अभी एक ब्रांच शुरू करी है, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मुझे लगता है कि रोबोटिक्स इंजीनियर्स की आगे चल के ज़रूरत होगी। अभी हाल ही में हमारी भारत सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट कर रही है। कहीं मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि एक डोलेरा में 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, तो उसमें बहुत जॉब आएंगे। क्योंकि इसीलिए हमने एक नई ब्रांच और शुरू करी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, दोनों का मिक्सचर। ईवी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल आ रहे हैं। तो देखिए आगे जो जमाना है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का है, कि ऐसा नहीं कि आप सीएस है तो आपको दूसरी ब्रांच के बारे में ना पता हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी हमें, तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इनकी जो एसआईजी होती है वो लगभग कॉमन है। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो उसको भी एआई के इनपुट्स दिए जाएंगे, क्योंकि यही फ्यूचर है। तो इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि कहाँ जॉब आएंगे, उसी के हिसाब से हम ब्रांच भी खोल रहे हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी एसआईजी को प्लान कर रहे हैं। यानी स्किल इम्प्रूवमेंट ग्रुप जो 40-40 घंटों की हम ट्रेनिंग कराते हैं, वो उसी को ध्यान में रख के कराते हैं कि जॉब कहाँ देखिए आज जो जॉब आपको दिख रहे हैं वो 4 साल बाद नहीं दिखेंगे, और जो जॉब नहीं दिख रहा है वो 4 साल बाद दिखेंगे। तो वो कौन से जॉब होंगे जो आज नहीं दिख रहे लेकिन 4 साल बाद होंगे। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। And sir, adding on to that, what are some of the key infrastructure that supports this kind of learning at IIST in terms of labs, research facilities and innovation centers? और इस पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, you will be very happy to know that we bought 68 smart boards and costing 1,70,000 each. So these boards are in all the classes of first year in IST and second and third year also. Just now we bought 201 i7 14 generation. Last year we bought 250 i7 13 generation. और उससे पहले शायद हम लोगों ने 184 लिए थे i7 12 जनरेशन। तो अब फिर उसके पहले हमारे पास i5 थे 561। तो केवल IST इन कॉलेजेस में हमारे पास करीब करीब 1205 तो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं। साथ में हमारे पास 3D प्रिंट वो भी है, अपना फार्मा में हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा 3D प्रिंटर्स हैं। अभी हाल ही में मैंने सैंक्शन किया है, हम रोबोटिक्स लैब बना रहे हैं, क्योंकि हमने एक ब्रांच शुरू की है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसकी भी मॉडर्न लैब बन रही है। And we are investing very heavily in a new building where first year students will sit. उनका बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न क्लासरूम बन रहा है। और i7 14 जनरेशन की कंप्यूटर लैब वहाँ हमने बनाई फॉर फर्स्ट ईयर। सो दे आर ऑल वेलकम, क्योंकि ये है कि आगे चल के जो एजुकेशन पैटर्न आएगा उसमें स्मार्ट क्लासरूम की अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी। दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल सी द व्हाट इज आवर फ्यूचर विजन। Talking about student life and the holistic development, so how does IIST strike a balance between the rigorous academics and other activities while also prioritizing the overall student wellness, their mental and physical health per se? We are having 20 clubs. Okay. क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी लेता हूँ, स्टिल आई एम प्लेइंग। तो हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए और स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे क्लब्स बना रखे हैं। जैसे अगर आपकी म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उसके लिए हमने क्लब बनाया श्रुति आह्लाद। तो वहाँ पे म्यूज़िक और डांस और ग्रुप सॉन्ग्स, ग्रुप डांसेस होते हैं। तो रामानुजम क्लब है जिसमें मैथमेटिक्स पर एम्फेसिस दिया जाता है। ड्रोन क्लब है, एयर मॉडलिंग क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है। तो मेरा ये मानना है कि आपको अपनी हॉबी को ज़रूर परस्यू करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या कभी डिप्रेस होते हैं। तो अगर आपकी कोई हॉबी है तो अगर आप उसमें 1 घंटा स्पेंड करें तो आई थिंक यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ योर लाइफ।
क्योंकि ऐसा नहीं होता हर एक के साथ। मैं भी मान लीजिए फेस किया है कि कभी कभी लाइफ में बड़ा अजीब सा लगता है, व्हेन यू फील लिटिल बिट डिजेक्टेड और अनमोटिवेटेड, कुछ भी मोटिवेशन नहीं है, डिप्रेशन है, तो उसमें आप घुमाइए बाहर तो और या खेलना शुरू कर दीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हॉबीज परसू करेंगे आप कोई, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आप जितने भी लोगों को देखोगे जो शिखर पे गए हैं, उनकी कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रही है, चाहे कोई भी रही हो, खेलना रहा हो या म्यूज़िक रहा हो या गिटार बजाना रहा हो, कुछ भी हो, but they are pursuing one particular hobby along with their academic or whatever pursuits they are. तो इस पर हमारा विशेष ध्यान है जी। So talking about environmental sustainability, how do you ensure and incorporate environmental sustainability into campus life? Could you elaborate on the Green Wave movement and initiatives like Dhanvantri Vatika and Pragyan Vatika? बिल्कुल, देखिए ये जैसे ही मैंने दिसंबर 2017 में ज्वाइन किया था, तुरंत ये इनिशिएटिव लिया, बिकॉज देयर इज अ थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर, बट मोर देन दैट we are facing one more threat which is more serious in nature, is climate change. If you can witness the way the rains are going on, within 1 hour, if you see the Bombay rain yesterday, so what is this? This is all climate change. So for that we have started Green Wave movement. That is, we are having 5 objectives. To enhance the biodiversity, we are planting trees. क्योंकि आपके साथ साथ जो पक्षी हैं उनको भी भोजन मिलना चाहिए, तो ऐसे पेड़ लगने चाहिए जो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा दें। दूसरा, इंदौर शहर जो है वो इंडिया के 18 शहरों में से एक में शामिल है जहां पानी की समस्या आ सकती है। तो हमने यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बड़े लेवल पर शुरू किया है। अभी कुछ दिनों पहले वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जी हमारे कॉलेज में आए थे, यहीं रुके थे, तो उनके कहने से भी हमने कुछ स्कीम शुरू करी, ट्रेंच खुदवाई, उसमें गड्ढे करवाए हुए हैं जिससे पानी अंदर जाए, बारिश का पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम बहुत बड़े लेवल पर वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और एक बहुत नया प्रयोग हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड उसका हमने नाम रखा है जो हमारी प्रज्ञान वाटिका, उसमें गाय हैं, गिर गाय हैं, तो गिर गाय का जो गोबर और गौमूत्र है, दैट वी आर यूजिंग टू मेक ऑर्गेनिक मैन्योर। और वी आर जस्ट एनकरेजिंग अवर स्टूडेंट्स टू से नो टू द प्लास्टिक। और एक और चीज़ की है कि एग्रो फॉरेस्ट्री, कि जहां हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसके चारों तरफ हम फलदार वृक्ष भी लगाएं। तो वी आर प्रमोटिंग, अब तक हम शायद 1,500 वृक्ष लगा चुके हैं और उसमें आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये ट्री प्लांटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव। तो इसी के साथ साथ हमने एक धन्वंतरी वाटिका बनाई जिसमें करीब करीब 220 मेडिसिनल प्लांट हैं और वो देखने लायक है, यू मे विजिट, क्योंकि उससे बच्चों में जो हमारी जो जड़ी बूटियां हैं पुरानी, जो आयुर्वेदिक प्रणाली है, जैसे अश्वगंधा है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ब्राह्मी है, तो उनको हम उसमें लगाए हैं कल्टिवेट। तो बच्चे जाकर के, जैसे पर्टिकुलरली जो बी फार्मा कर रहे हैं, वो जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए उनका यूज़ हो सकता है। तो वो जी, और इसी तरह से जो हमारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हम लोग उगा रहे हैं, तो फैकल्टी एंड स्टाफ उसको बाई कर लेता है बहुत रीजनेबल रेट पे, तो इट्स प्योरली ऑर्गेनिक। तो दिस इज वन ऑफ आवर यूनिक एंडेवर। Moving on to when we talk about placements and future readiness, so how does IIST specifically prepare its students for successful placements, and could you highlight key industry collaborations, tie-ups, recent placement records and notable success stories of alumni? Yeah, sure. देखिए, to make students ready for placement, that is a wrong word. We have to make them placeable. If they want, they can join services. If they want, they can start their own startups. An entrepreneur, they can become entrepreneur also. And this preparation must be started right from the beginning.
Not that in the final year you should prepare your students for placement. So that is why we are conducting SIGs, Skill Improvement Group. I told you, in each semester we are having 40 hours of special training. Then English plus aptitude. That also we are doing in next all the 4 years, whether it is IST or IIP. Third, after 6th semester, we introduce that each and every student, after their 6th semester, once they will come into last year, that is 7th semester, first what we are doing 40 hours skill up training. Whatever they have studied in the last 3 years, just from them we are picking up some important, topics, which is relevant for the interview. So we will just try to revise it. 40 hours skill up, then they will go for internship compulsorily, 1 or 2 months. After internship, after they will come back, there will be regular classes or specialized SIGs. Like for example, I told you there is a scope of cyber security. So we have to give them special training for cyber security or blockchain or edge computing or cloud computing. So that also will be in 7th semester. So students are free to choose their specialization. Yeah, they are free to choose. After 7th semester, they are free to choose this SIGs. Okay. Then how to crack the interview? There will be a special session. Okay, once you are facing the interview, what should be the, how you will present yourself? Mock interviews. So we are arranging our mock interviews in a big way. Our CDC cell is doing that job. Even after final year of exam, this is a very unique feature of our IST. We have divided the students in 3 groups. After 8th semester, after their exams also. First group, those who are unplaced. Second group, those who got placement but they are not happy and they want to enhance their package. Third group, those who got a very good placement, good package, and now they would like to go for better package or some higher degree. For them also we are mounting training. But since some of them are doing job or some of them have gone their homes because their 4th, 8th semester is over. So we have given them option, either you can come to college, offline training or online. That is free. So our faculty is taking care of that. And we are dividing the students in groups. They say, and we have named it very beautifully. They say my group name was Kaltaru. So that we can hear them and we can try to understand their problems, where they are facing weakness or what is their, when they are facing interview, where they are lacking. Right. So we are asking them, just sit quietly and try to figure out the reason of your failure. Because we have to be very honest with ourselves. Where we lagged when we are facing the interview. Right. The only thing you can answer. So self-analysis. Self-analysis. So we are motivating them. All right. Yeah. So we talked about AI in detail. So just bringing that back, what is AI impact and how is it different from other technologies? Because like you said, education, healthcare, agri-tech, these are some fintech, these are some industries that have transformed and being revolutionized by AI. So, and education is no exception. So what is AI impact? Can you please elaborate on that? It's a very tricky question. Till this date, we have done so many, so many inventions. Printing press was an invention. Even mobile was invention. Coding was invention. But we have definitely mastered them and we have become master of those inventions. But AI is different. AI is autonomous. And it has a free will. AI is not your slave. So it is a free will. Abhi 2 दिन पहले I was hearing the podcast of First Post, Palki Sharma. So अभी जो Chat GPT का मॉडल आया है, O3, वो रिफ्यूज कर दिया, उसने शट डाउन.
वो चल रहा था मतलब प्रोजेक्ट को देख रहे थे वो लोग, तो चैट GPT 03 refuses to shut down, मतलब आई एम नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। सो एजेंटिक AI पहले था, एक एजेंटिक AI आया है, तो एजेंटिक AI में अब ऑटोनॉमस है। So how will that agentic AI will make other AI agents and how will they will behave? It's a very, very tricky thing. There was a interview of Mo Dot. उनका एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था। मो डेटाट बोलते हैं उनको, थोड़ा स्पेल उनको बोलना प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है। उनका ये फोरकास्ट था कि बाय 2049 AI will be billion times more intelligent than human beings. Now it is very dangerous. So we are entering into a very uncertain world. We must feel scared and we must control how we should develop AI. Otherwise, forget about education. It's a threat to the humanity. Okay, how AI will behave, क्योंकि it is autonomous, as I am saying. तो एजेंटिक AI कहाँ तक जाएगा, वी डोंट नो, बट उससे हमें डरना भी नहीं। वी हैव टू लर्न ऑल द टेक्निक्स ऑफ एजेंटिक AI एजेंट्स को यूज करना आना चाहिए, सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई आवर एफर्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग आवर टाइम। वी शुड collaborate with them. That is Industry 5.0. where human beings should learn how to collaborate and how to work with AI powered robots. That is Industry 5.0. तो उसी में हम अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं, टू कीपिंग इन व्यू ऑफ दिस थ्रेट। So we should not, आपके हिसाब से like we should not be afraid of the new technology, but maybe we can use it for our advantage. But we should learn. We should learn from it. We should become AI administrator. We should know prompt engineering. कि what we should ask exactly from the chat GPT or other tools. Right. So, sir, carrying on with the discussion, first of all, it's very commendable and it's very inspiring to know how IIST is making a mark and supporting students not just to study but to evolve, grow with the times, and especially make a mark in the fast-changing world. So that's really commendable, sir. Thank you. And moving on to the next set of our discussion. So what advice would you like to give students who've just cleared their 12th and JEE exams and are confused about what's next? First of all, they should not live on borrowed dreams. जो भी सपना हो उनका अपना होना चाहिए, ना कि पड़ोसी का या माता पिता का। देखिए, बीटेक करें आप, IIT से करें, IST से करें, कहीं से करें, MBA करें, B फार्मा करें, M फार्मा करें, डिग्री के लिए ना करें। हमारा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि हम बीटेक की डिग्री के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि अब जो आफ्टर 4 years you will not get a job if you are only inspiring for a degree. Right. So if your dream is borrowed, then only you will pass just like that, just coming to the school, college, giving exams and going back, because it is not your dream. Right. If it is your dream, let's say for example, in our college we are having 75% attendance rule. Each and every classroom is having a, लगा दीजिए, Okay. हर क्लासरूम में हमारे मशीन्स लगी हुई हैं, तो आपको डेली अटेंडेंस चाहिए 75%। तो वही 75%, वाई नॉट 100%? बिकॉज आपने चूज किया है कि अब आपको बीटेक करना है, तो डिग्री के लिए क्यों कर रहे हैं आप? जब तक आपका इंटरेस्ट उस प्रोसेस में नहीं आएगा जो आप पढ़ रहे हो, तब तक आपको सर्विस नहीं मिलेगी। Right. ये बहुत क्लियर पता होना चाहिए,
क्योंकि अब वो डिग्री करके वो पुराने जमाने चले गए कि आपका इंजीनियर हो गए, नौकरी भी मिल गई और शादी भी हो गई। अब ना नौकरी मिलेगी ना शादी होगी। तो उसके लिए आपकी निष्ठा चाहिए, उसको मैं कह सकता हूं पैशन। अनटिल अनलेस आप इसको अपना पैशन नहीं बनाएंगे, एजुकेशन को या जो भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं वो आपका पैशन नहीं होगा, आपका अपना सपना नहीं होगा, जब तक आपकी निष्ठा उसके प्रति नहीं होगी, एक संकल्प नहीं होगा कि मुझे सीखना है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लर्निंग। आर यू लर्निंग, राइट, और आर यू जस्ट कंप्लीटिंग अ डिग्री? देयर इज अ डिफरेंस। और लर्निंग के लिए पैशन जरूरी है, पैशन और लगातार परसिवरेंस, राइट, कि अगर एक बार कुछ भी हो जाए तो यू मस्ट वर्क हार्ड। देखो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और वो आपको करना ही होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आपका जो माइंड है राइट, वो आपको इस तरह से बचाता रहता है। सुबह उठना है तो नहीं उठेगा, अरे कल 11 बजे तक फिर पिक्चर देखी थी। तो उनको हम लोग वो जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं समझाते रहते हैं, 5 सेकंड विंडो, ईट योर फ्रॉग डेली, वो जो ऑल गिमिक्स जो भी है, लेकिन उसके पीछे एक ही पर्पज है कि यू हैव टू बी रेडी टू डू हार्ड वर्क। क्योंकि वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर कि यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, you are the maker of your environment, you are the deciding factor. We pursue here the Heartful Meditation Trust. वो भी एक हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट है जो समग्र समुत्कर्ष में है। Know thyself and be thyself willing to evolve. देखिए द बेसिक जो हमारी टैग लाइन है IST की, कि वर्ड इज इवॉल्विंग, आर यू रेडी टू इवॉल्व? The basic purpose of human life is evolve, right, and evolve to your fullest potentiality. देखिए आपको वटवृक्ष बनना है, आप बोनसाई बन के कैसे जी सकते हो? और जब तक आप बोरोड ड्रीम्स पे जियोगे तब तक बोनसाई बनोगे। right, और वो जब आपका अपना संकल्प होगा कि ये मैंने किया है, और मेरा सोचना था कि मुझे बीटेक करना है, तो लेट अस गो फॉर द नॉलेज, नॉट फॉर द डिग्री। एनहेंस योर स्किल्स, क्योंकि आगे जो है आपका मुकाबला अब ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं है, आपका मुकाबला उन लोगों के साथ है जो आपके हाथ में ही नहीं है। मैंने बताया ना, एजेंटिक एआई ऑटोनॉमस है, ही इज नॉट योर स्लेव, फ्री विल है, तो कितना मैनीफोल्ड इंक्रीज होगा इंटेलिजेंस का। right, So how to improve your personality, your persona, and to take up the challenges of that changing world. So that must be there. तो यही मेरी 12th पास करके जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक ही सलाह है, हार्ड वर्क, मोर हार्ड वर्क एंड मोर हार्ड वर्क, प्लस ऐसे डिसिप्लिन। अपने को टाइम मैनेजमेंट इज अ लाइफ मैनेजमेंट। right, So they have to manage their time because they have to do multitasking. उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे कि how they should do multitasking. right, क्योंकि अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हमसे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। तो हमने कहा नहीं, तुमसे बहुत अच्छा कंसंट्रेशन हो रहा है। जब तुम वीडियो गेम्स खेलते हो तो तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन होता है नहीं। इफ आंसर इज यस, तो इट मीन्स यू आर एबल टू डू कंसंट्रेशन। केवल सब्जेक्ट चेंज करने की जो देर है, यानी आप कंसंट्रेशन के लायक हैं, आप यू कैन डू कंसंट्रेशन, यू हैव अ वेरी गुड पावर टू कंसंट्रेट। आपको केवल अपना सब्जेक्ट चेंज करना है जिस पर आप कंसंट्रेट कर रहे हो। right, अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर लोगे। दूसरा मैं उनको बताता हूँ रिवर्स बकेट लिस्ट, कि आपको ये सोचना है कि आप, हम देखिए बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो गांव से आ रहे हैं, तो मैं कहता हूं तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आपके कुछ लोगों के पेरेंट्स इलिटरेट भी हैं, उसके बावजूद तुमने पढ़े, उसके बावजूद तुमने कुछ स्किल सीखा, तो इट इज रिवर्स बकेट लिस्ट। यू शुड फील प्राउड definitely, कि आप यहां तक पहुंचे। तो आपको ये नेगेटिव फीलिंग्स अपने दिमाग से निकालने चाहिए। और 12th के स्टूडेंट्स को मेरी ये सलाह है कि जो आपका ये ब्रेन है, इट इज सुपर कंप्यूटर, और एक दिन में 60,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं, जिसको हम हाई बीटा वेव कहते हैं। okay, और मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव,
एंड सेल्फ डिफीटिंग। तो आप ये बताइए मैम कि मेरे पास अभी एक प्रोग्राम है, मैं आपको भेज देता हूँ और आपका ये पूरा जो मोबाइल है ये खत्म हो जाएगा, तो आप वो खोलोगे वो प्रोग्राम, क्रैश कर जाएगा आपका मोबाइल। वुड यू लाइक टू ओपन दैट? शैल आई सेंड यू? नहीं सर। नहीं। तो बट व्हाई यू आर सेंडिंग नेगेटिव सिग्नल्स और नेगेटिव थॉट्स टू योर ब्रेन ऑन डे एंड आउट? डेली आप भेज रहे हो, आई कैन नॉट डू इट, आई एम वीक, आई एम इल। तो जो आपका 90% सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और 10% ही कॉन्शियस है, बल्कि 95% कहते हैं लोग। तो आप सबकॉन्शियस माइंड में आप सेल्फ डिफीटिंग सेंटेंस भेज रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस भेज रहे हो, तो वो तो क्रैश करेंगे। राइट। और एक दिन में 60,000 थॉट्स हैं, उनमें से आपने 55 थॉट्स तो नेगेटिव भेज दिए, तो कितना ही बढ़िया सीपीयू वो तो क्रैश करेगा। राइट। तो मैं कविता भी लिखता हूँ, मेरी एक कविता की किताब आ गई है, पब्लिश हो चुकी है, शिव से संवाद। उसमें मैंने 2-3 लाइनें लिखी हैं कि ये बेचैनियां, ये बेचारगी का आलम, ये बेचैनियां, ये बेचारगी का आलम हमारे अपने ही मन के प्यारे और दुलारे सपने हैं। कि हम बोर हो रहे हैं, हम वीक हैं, ये अपने ही मन के प्यारे और दुलारे सपने हैं जिन्हें हमने अपने ही ख्यालों की खुराक से सोच सोच के पाल पोस कर बड़ा किया। हम अपने को अपने ही बनाए हुए अंधेरे कमरों में बंद किए जाते हैं। तो द प्रॉब्लम इज ओनली विद अस। सारी लड़ाई हमारी अपने आप से है। यही मेरे सलाह है बच्चों से कि आपकी लड़ाई केवल अपने आप से है। अपनी कमियों को देखिए, उनको दूर करिए, क्योंकि जो भी कुछ है वो आपके अंदर है। आपके अंदर वो शक्ति है जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल अंदर जाइए और अपने अंतर्निहित शक्तियों को, जो आपकी इनहेरेंट पावर है, उसको रियलाइज करिए। क्योंकि अगर आपने वो सीख लिया तो आप कहीं नहीं पीछे हटोगे। तो अभी मैं एक बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छा स्पिरिचुअल गुरु भी हैं और मोटिवेटर बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीच देते हैं, उनको सुन रहा था, आचार्य प्रशांत जी को। उन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा कि आप देखिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो नहीं होना चाहिए और आपके अंदर ऐसा क्या नहीं है जो होना चाहिए। ऐसे हमारे बाबूजी महाराज थे जिनके अंडर में जो उन्होंने सहज मार्ग दिया, मेडिटेशन। तो वो ये कहते थे, उनसे पूछा हमारे गुरु ने, जो चारी जी थे, उनके वो गुरु थे, उन्होंने पूछा कि हेल कहाँ है और हेवन कहाँ है। तो बाबूजी महाराज ने कहा कि हेवन नहीं है लेकिन हेल है। तो जो हमारे गुरु जी थे चारी जी, उन्होंने पूछा कि सर हेल कौन से प्लेनेट पे है, आप कह रहे हो हेल है। बोले वो जो आप अपने चारों तरफ बनाते हो। तो वी आर क्रिएटिंग अवर ओन हेल, वी आर क्रिएटिंग अवर ओन एनवायरमेंट। तो आप अपने, मैं तो उनसे बोलता हूं, आप एनर्जी वैम्पायर से बचिए, दुष्ट संग जन दे विधाता। अगर अपने को चेंज करना है तो एनवायरमेंट को चेंज करिए, अपने फ्रेंड्स को चेंज करिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूं कि अगर जब कोविड था, चल रहा था कोविड, तो लोग अपने रिलेटिव से मिलने भी नहीं गए। हाँ या ना? नहीं सर, ज्यादातर नहीं गए। फ्यूनरल्स में नहीं गए? हाँ। नहीं गए ना? नहीं। क्यों नहीं गए? सेल्फिशनेस कह सकते हैं। नहीं, सेल्फिशनेस नहीं, कोविड हो जाएगा। हाँ, वही कि आपको कभी हो नहीं जाए, आप नहीं, आप भी जाओगे। हाँ। तो फिर आप उन लोगों से क्यों मिल रहे हो जो कोविड की तरह से हैं? Why you are having a company of the people who are having COVID, mental COVID? मेंटल कोविड। दुष्ट संग जन दे विधाता, भगवान दुष्टों का साथ ना थे। तो ये जो एनर्जी वैम्पायर हैं जो आपको भटका रहे हैं, उनसे बचिए। उनसे बचिए और अपने को, जो आपके साथी संगी हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनका एक ही कॉमन पर्पस हो आगे बढ़ने का। क्योंकि टाइम इज अ मनी। आपकी एनर्जी और टाइम दोनों लिमिटेड है, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो आप अपनी एनर्जी को वहां लगाइए जो सही हो।
So moving on to the next question, many times students and parents feel that marks and scores are the sole determinants of their future or what lies ahead. But so it's a very proven fact that there is something more than marks, and there is something that students and parents should look for while choosing an engineering college. So what are those some of the key factors, features that we should look for? देखिए, I should not say this, but थोड़ा डिफरेंट सवाल है जो मुझे दूसरों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। Okay. क्योंकि मेरा मानना है कि अपने हर लफ्ज का खुदाई ना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तो आई शुड नॉट क्रिटिसाइज एनी अदर इंस्टीट्यूशंस, बट जब आप इंस्टीट्यूशन देखें तो देखें कि उसकी अप्रोच क्या है। Okay. व्हाट इज द रोड मैप, प्रॉफिट या स्टूडेंट सेंट्रिक, Right. फ्यूचरिस्टिक और जस्ट लाइक दैट, Conventional. हाँ. होलिस्टिक डेवलपमेंट और नॉट, और वेदर इट इज पॉसिबल टू कम्युनिकेट विथ सीनियर्स। आपको इट विल बी वेरी हार्टनिंग टू नो दैट इन आवर इंस्टीट्यूशंस आवर स्टूडेंट्स कैन मीट एनीवन विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। Okay. Even to me directly they can come to my room. Okay. No appointment is necessary. Reason is there कि we have a very simple sentence. हम अपने तीनों कॉलेज में स्टूडेंट्स एडमिट नहीं करते, तो फिर किसे एडमिट करते बताइए। हम उन तीनों कॉलेज में स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं करते। देन कंप्लीट करो सेंटेंस आप। So, but students, that is what make the college. No, हम उनको अपने परिवार में शामिल करते हैं। Okay. They are part and parcel of IST, IP, IMR family. Family. So they are not our students. They are our family members. Okay. पेरेंट्स बहुत ही सपने के साथ उनको भेजते हैं। एक स्वप्न होता है, किसकी इनकम बहुत कम है, फिर भी वो भेज रहा है। Right. तो ऐसे कॉलेज को चुनिए जहां पर इन सब चीज पर जोर दिया जाए, क्योंकि बिना होलिस्टिक डेवलपमेंट के कुछ नहीं हो सकता। Okay. आप केवल एकेडमिक्स में चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। एकेडमिक्स के साथ कम्युनिकेशन, हम अभी आगे देखेंगे भी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी सोसाइटी के प्रति को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो सब आपको देखना है, वही सब पर्सनालिटी का निर्माण करना है। इसलिए समग्र समुत्कर्ष का अभिप्राय हमारा वही था, Okay. सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। Understood. And sir, could you elaborate on the merit-based fee structure and the benefits offered to students based on their GEO scores at IST? We have a, देखिए मेरा ये मानना है कि ज्ञान और दान दोनों पात्र को देख के दिया जाना चाहिए। एक बार सीता जी ने दान दिया था, पता है क्या हुआ था? रावण को। तो दान भी पात्र को देख के देना चाहिए और ज्ञान भी पात्र को देख के देना चाहिए। तो हमारे यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जिनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, वो JEE में हो या 12th में हो, तो उन लोगों के लिए हमारा डिफरेंट फीस है और बहुत कम है। Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आज का दैनिक भास्कर का एडवर्टाइजमेंट हो तो मैं दिखाऊं आपको कि ये है बीटेक में जिन बच्चों के परसेंटाइल 90 to 100 हैं JEE में, उनकी फीस 62,000 है। अच्छा. और 82, 89.99 है तो 64 है। Okay. और 75 to 79.9 है तो 68,000 है साल की। हाँ. इस तरह से बी फार्मा में भी ये बात लागू होती है और मैनेजमेंट में भी लागू होती है। Okay. तो व्हाई वी आर डूइंग इट? क्या एक्चुअली ये कॉलेज में प्रोफेशनल्स ही चला रहे हैं, हमारे मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी लिबरल, बट स्टिल दे आर अलाउइंग मी टू डू सो, डूइंग दिस थिंग्स। व्हाई? इसमें कई सारे चीजें हैं। नंबर वन, जो लोअर इनकम ग्रुप है या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, इवन मिडिल इनकम ग्रुप है, और उनके बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, दे आर मेरिटोरियस, they cannot get admissions because of the financial crunch in very good institutions. Right. तो IST, IP and IMR इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि इन बच्चों को जो मेरिटोरियस हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, धर्म के हों, केवल मेरिट
के बेसिस पर उनको IST में एडमिशन मिलता है. वी डोंट हैव एनी अदर कैपिटेशन फीस, नो मैनेजमेंट कोटा, और ये डायरेक्ट अलॉटमेंट आता है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से. बस दैट्स इट. तो एक तो वो पर्पस हुआ, सोशो इकोनॉमिक पर्पस हुआ. राइट. दूसरा पर्पस ये हुआ, जैसे मैंने पहले कहा, कि एक इकोसिस्टम आपको बनाना पड़ता है. तो अगर इकोसिस्टम बड़ा हेल्दी है, वाइब्रेंट है, कॉमन पर्पस है, कॉमन विजन है, कॉमन मिशन है, तो इंस्टीट्यूशन ग्रो करेगा. राइट. इंस्टीट्यूशन किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है. कितना ही ऑडिटोरियम बना लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है अगर कोई भी अच्छा टीचर पेड़ के नीचे ही बैठ जाएगा तो आप वहां जाओगे. एक बात बताइए, कभी नहीं सुनते आप गांव में कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है और हकीम है, उसकी दवा से सब लोग ठीक हो जाते हैं, लाखों की भीड़ लग जाती है. Yes, yes. तो इट इज नॉट ए बिल्डिंग. बिल्डिंग, yes, of course it matters and we are investing it heavily, but apart from that it is the basic education, quality of education which is important. इसलिए हमने ये इकोसिस्टम बनाने के लिए मेरिट बेस्ड फीस स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया. And that is, sir, there in all the three institutes. Yes, Okay. all the three. Okay. So talking about the infrastructure, so can you describe the sports facilities and canteen options available to students? That is a very unique thing. आप हमारे कैंटीन में जाइए, आपको एक चार्ट मिलेगा लिखा हुआ. हाँ. मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मुझे अमूल से कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें लिखा है कि पनीर भी अमूल का ही आएगा. अच्छा. आइसक्रीम भी अमूल की आएगी, क्योंकि अमूल की आइसक्रीम आपको याद होगा, इट इज नॉट फ्रोजन डेजर्ट. तो वो भी लिखा हुआ है. दालें किसकी आएंगी ये भी लिखा हुआ है. ओके. मसाले किसके आएंगे ये भी लिखा हुआ है. आटा किसका आएगा ये भी लिखा हुआ है. तो मेरा हाइजीन पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है और क्वालिटी पर. क्वालिटी इज द बज़ वर्ड ऑफ IST, IPMR. ओके. तो कैंटीन में आप देखें, और इट इज ओपन. जो हमारा स्टोर रूम है उसमें कोई भी जाके देख सकता है कि वहां पर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. स्पोर्ट्स, तो मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूं शुरू से. स्टिल आई एम प्लेइंग. वी हैव इंट्रोड्यूस पिकल बॉल फ्यू इयर्स बैक और नेशनल कराया था. इट्स अ न्यू गेम. हमारे पास 5 कोर्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल के. आजकल काफी क्रेज है, लेकिन फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, क्रिकेट भी है. और हमारे अपने डीन से मैंने कहा है कि आप कबड्डी शुरू करिए, क्योंकि वो हमारी मिट्टी का गेम है. तो स्पोर्ट्स पर बहुत जरूरी है. और हमने हॉस्टल में एक बात कही है कि आप चाहे सुबह आए या शाम आए, चॉइस इज योर्स. आप कोई सा गेम खेलें, चॉइस इज योर्स, लेकिन आपको आधा घंटा कमरे से बाहर निकलना है. अच्छा. वी आर सच ए ग्रीन कैंपस, और इतने बढ़िया हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं कि शायद ही किसी कॉलेज में हो. तो उसका यूज करिए. राइट. एंड नाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल. तो स्पोर्ट्स पर मेरा बहुत जोर है, क्योंकि वो हमारे सहज, वो जो हमें समग्र समुत्कर्ष योजना, उसका भी पार्ट है. Okay, this is fine. Sir, and what support does IST provide for students interested in research and starting their own ventures and startups? Very nice. इसके लिए हमने स्टार्टअप्स के लिए हमने 20 लाख रुपीस का ईयर मार्क किया हुआ IST में. Okay. 10 lakhs और 10 lakhs each IST, IP और IMR के लिए है. ये ईयर मार्क्ड है. If they will give some good idea of startups or entrepreneurship, we will support them. Okay. प्लस एक बहुत ही यूनिक फीचर हम लेके आए, एंड यू मस्ट नो अबाउट इट, दैट इज रिसर्च पेपर. इंडिया में R&D को प्रमोट नहीं किया जा रहा कॉलेजेस में. Okay. तो उसके लिए हमने क्या किया है कि आपको उनको 70,000 रुपए तक के प्राइजेस मिल सकते हैं इफ दे कैन राइट रिसर्च पेपर इन अ पर्टिकुलर मैगजीन्स. वो कैटेगरी है. अच्छा. कि आपका इस जर्नल में छपेगा तो आपको 50,000 मिल सकता है, इसमें छपेगा तो 12,000 मिल सकता है. वो कैटेगरीज हैं. तो हम ये रिसर्च स्कीम लेके आए. दे कैन कॉपरेट और दे कैन कोलैबोरेट विद देयर फैकल्टी. फैकल्टी के लिए भी है. ओके. अच्छा. तो फैकल्टी और स्टूडेंट्स मिलकर के रिसर्च पेपर लिखें, और ऐसे रिसर्च पेपर लिखें जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो. हार्वर्ड वगैरह और उसका है, स्कोपस है, SCI जर्नल है, UGC के, तो वो जर्नल्स हैं. राइट. जिसमें मतलब बोगस नहीं छपेगा, बोगस रिसर्च पेपर नहीं छपेगा. ओके. इफ यू आर डेफिनेटली डूइंग समथिंग जेन्युइन, इट विल बी पब्लिश्ड. तो वो स्कीम है. ऑलराइट. सर, जस्ट लास्ट
two questions. As a group advisor, what's your overarching vision for IIST and how will it empower India's journey in science, technology and innovation in the years to come? And what is your long-term vision for IIST for probably say till 2030? Our vision is ready. 2030 it is in writing. Okay. उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आगे आने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना था, अब एज कंप्यूटिंग आ गया है। एक इमर्सिव एनवायरनमेंट आ गया है, जैसे कि AR, VR और अब आ गया है मिक्स रियलिटी। राइट। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो आएगी ही, आ गई है और भी आएगी। तीसरा है डिजिटल ट्रस्ट आर्किटेक्चर, कि भाई इतना ज्यादा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है कि जो हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं वो कहीं प्राइवेसी उसकी ब्रीच नहीं होने चाहिए। और एजेंटिक AI तो है, नो कोड सॉफ्ट, मतलब कोई कोड की जरूरत ही नहीं है। Right. उसके अलावा ये भी हो सकता है कि इंस्टेंट अवतार हो, जैसे आपने वो देखी थी फिल्म एक आई थी इंग्लिश की जिसमें अवतार था, अवतार ही नाम था। हाँ. तो इंस्टेंट मल्टी मॉडल AI अवतार हो, आपके सामने बैठा हो, आपने कोई क्वेश्चंस पूछे, उसका जवाब दे दिया, आपने कहा इसमें क्या गलती है वो भी बता दिया। अभी हुआ है, अभी अस्त्रा लॉन्च किया है। Okay. तो उसमें वो एक स्टूडेंट है, वो क्वेश्चंस पूछ रही है एंड दे आर गिविंग रिप्लाई। वो बहुत कॉमन है, इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है वो। Okay. तो इस तरह की चीजें होंगी। एक अडॉप्टेड प्रेडिक्टिव AI आ रहा है, तो वो तो उसको इन सबको ध्यान में रखते हुए तो जो हम आगे चल रहे हैं, जैसे BCI आ रहा है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। हमारे उस पर प्रयोग हो रहा है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा। और अब कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि आप किसी भी भाषा में बोलें, आई कैन हियर इन हिंदी और आई कैन हियर इन इंग्लिश। राइट। इफ यू कैन स्पीक इन फ्रेंच, डू इट। अच्छा रहेगा। तो ये भी आने वाला है। इनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो अब सोचा है कि क्या करें, देखिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पे 2030 का हमारा विजन है, उसमें हमने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। Okay. 3 things are very important: टेक्नोलॉजी, कंटेंट एंड पेडागोजी। Okay. जब हम तीनों को जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक ठीक नहीं होगा मामला। तो हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इट शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 थिंग्स। यही हमारा विजन है, टेक्नोलॉजी, कंटेंट एंड पेडागोजी। तो उसके लिए स्मार्ट क्लासरूम की हम कल्पना कर, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स तो आ गए, आगे चल के हम स्मार्ट क्लासरूम का और AI इंटीग्रेशन करवाएंगे। Okay. उसके साथ स्मार्ट क्लासरूम में ब्लॉकचेन और IoT को भी शामिल किया जाएगा। तो ये जो AI के साथ कोलैबोरेशन होगा, AI इंटीग्रेशन विद क्लासरूम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो AI जो है, दे विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। वो लेक्चर प्लान कर सकता है, लेक्चर फैकल्टी को भी बहुत हेल्प मिलेगी। पूरे उनके मार्क्स का विद इन सेकेंड्स यू कैन नो। तो दैट इज आवर कंसेप्ट इन फ्यूचर, कि आवर क्लासरूम्स विल बी स्मार्ट क्लासरूम विद AI इंटीग्रेशन। ब्लॉकचेन से उनके हम रिकॉर्ड्स को ठीक रख सकते हैं, वही क्लास में जो उन्होंने टेस्ट दिए हैं। IoT से पूरा टेम्परेचर से लेके एवरीथिंग कैन बी मेंटेन्ड। ऐसे ही फिर हम एक अडॉप्टिव लर्निंग सिस्टम है, जिससे की थिंग अडॉप्टिव लर्निंग सिस्टम। पिछले 3 साल से मैं इसी बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं कि देयर शुड बी डिफरेंशिएटेड लर्निंग। क्या मतलब इसका? पर्सनलाइज्ड लर्निंग कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करना है। ये हेल्थ केयर में भी आने वाला है। वो एक ही एंटीबायोटिक सब जगह लागू नहीं होगी कि एक दे दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कि तुम्हें मलेरिया हो तो तुम भी ये खा लो, और तुम्हें टाइफाइड हो ये भी खा लो। अब होगी पर्सनलाइज्ड कस्टमर, पर्सनलाइज्ड केयर। इसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मेरा एक, आई एम फुल्ली कन्विंस्ड देयर शुड बी पर्सनलाइज्ड लर्निंग, डिफरेंशिएटेड लर्निंग। आपका लर्निंग पैटर्न हम अलग करें, एक्स का अलग करें, उसकी अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को देखते हुए। तो दिस कंसेप्ट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग। थर्ड, इमर्सिव टेक्नोलॉजी, मैंने बताया AR, VR एंड MR, उनका यूज, ताकि वो एकदम देख सकें 3D, पूरा 4th डायमेंशन में देख सकें। चौथी बात जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी कि क्यूरियोसिटी।
क्वेश्चनिंग, जागरूकता, वो हम बहुत ज्यादा उसको प्रमोट करेंगे। प्लस एम्फेसाइज करना है बच्चों को कि आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग पैटर्न पे आइए, क्योंकि लाइफ ये तो आपको पूरे साल सीखना है। राइट, तो इस हैबिट को कल्टीवेट करिए, बिकॉज यू आर इन अ वेरी वेरी डायनेमिक वर्ल्ड। मैंने आपको बताया कि द challenges which you are going to face in future is mind boggling. ट्रेमेंडस। फिर आपको अच्छा एक बात बताइए, जैसे रोबोट है और एआई पावर्ड रोबोट है, तो रिपीटेटिव काम तो वो 5 सेकंड में कर लेगा जो आप 5 साल में करोगे। हाँ, तो हाउ कैन यू बीट एआई पावर्ड रोबोट? सर, what sort of human touch. what sort of particular characteristics you should develop, वो बताइए। so something very typical to human, जो नहीं, उसको देखिए, उनका जो सोचना है वो बढ़ रहा है, हालांकि उसमें भी वो हमसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमको डेवलप करना है क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो उसको हम ज्यादा हैकाथॉन जो हम कराते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इट, कि वी हैव टू बीट देम इन एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। मान लीजिए कोई एक्सीजेंसीज के लिए उनको तैयार नहीं किया गया, फीडबैक नहीं दिया गया, बट यू कैन डील विद इट, क्योंकि आपको इतनी चीजों को आप डील करते हैं, मुसीबतें इतनी पड़ी कि आशा हो गई। तो वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, जिसमें अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गया जिसमें एआई पावर्ड रोबोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना उसको बताया नहीं गया था उस सिचुएशन को डील करना, बट यू कैन डील। तो उसके लिए आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को आगे बढ़ाना है। तीसरा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को करना है, वो करना है कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड विद सोसाइटी। यू कैन नॉट बी अलोन, और सोल आप उसमें सैलोज में नहीं रह सकते। तो आज जो मिसिंग है वो है इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन, टोटली मिसिंग है। तो मेरा तो ये कहना है कि हमारी फैकल्टी सबिस्टिकल लीव पर जाए और इंडस्ट्री में काम करे कुछ दिनों के लिए, और इंडस्ट्री के लोग एजुकेशन हमारी फील्ड में यहाँ पे आए 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो वट एवर इज हैपनिंग इन इंडस्ट्री, भाई व्हाई दे आर सेइंग कि आवर स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी, बिकॉज वट एवर दे आर डूइंग देयर वी आर नॉट अवेयर। Right. तो let the industry people should come and teach us, tell us कि what they want. इसी तरीके से जैसे इंदौर है, तो हमारी कोई सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेदारी है कि इंदौर में हम कैसे डेवलप करें, या हम इसको स्मार्ट सिटी बनाने में क्या सहायता करें। तो इंडस्ट्री, एकेडमिक्स और सोसाइटी के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। पहले ऐसा होता था गुरुकुल में। फिर एक हमारा एम्फेसिस सॉफ्ट स्किल्स पर है, कम्युनिकेशन, क्योंकि आगे चल के बहुत ज्यादा जरूरी है सॉफ्ट स्किल्स का डेवलप, क्योंकि वही आपको बचा पाएगा एआई से। फिर एक और चीज हम नई चीज करने वाले हैं जो कहीं शायद नहीं होगी अब तक, एंड आई मस्ट एम्फेसाइज दैट एंड यू शुड पब्लिसाइज इट, वो है आईटीआई ट्राइब की आईटीआई, ओके, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। अच्छा, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कि घर में, अगर मुझसे ही पूछ सकते हैं आप कि घर में अगर लाइट चली जाए तो आप स्विच ठीक कर सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं कर सकते। आप कोई कारपेंट्री का वर्क जानते हैं? नहीं जानते। कि आप अपनी कार में थोड़ा सा भी हिस्सा गड़बड़ हो जाए तो सीधा कहाँ भागते हैं, गैरेज। तो वाई? चाइना में उनके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो ये स्किल्स बच्चों को सिखा रहा है। तो हम शायद ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि 1 साल में एक स्किल आप सीखो, उसका एग्जाम नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव करके दिखाओ, कार ठीक करके दिखाओ। अच्छा, तो वो हम इंट्रोड्यूस शायद करेंगे इस बार, कि ये आगे भी उसको बढ़ाएंगे। दूसरा ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना है। पहले क्या होता था, पहले यूनिवर्सिटीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता था और इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट करती थी। इंडस्ट्री देखती थी कि यूनिवर्सिटी में क्या यूनिक चीज हो रही है, किस पे रिसर्च हो रही है। अब ऐसा ही नहीं। तो व्हाई कांट वी हैव अ गुड रिसर्च सेंटर जहां पे हम ऐसे रिसर्च करें जो इंडस्ट्री के लिए यूजफुल हो। फिर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न है और सबका स्वप्न है। तो उसके लिए हमें स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देना है। स्पोर्ट्स गेम्स तो मैंने बताया आपको कि वो हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस ग्रीन वेव क्लब, क्योंकि वो तो क्लाइमेट चेंज, तो मैं कह रहा हूँ इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द ह्यूमैनिटी। तो उसके प्रति जागरूक खुद भी हो
और दूसरों को भी करें। एक और बात, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसको भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर आप एक ईसी में कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस की जो स्पेशलाइजेशन है उनको भी करें, थोड़ा सा वो जरूरी है, राइट, बहुत जरूरी है। और नॉट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनहेंसिंग योर स्पिरिचुअल कोशेंट। ओके, इसी के लिए हमने हार्टफुल मेडिटेशन ट्रस्ट के साथ एमओयू साइन किया है। अच्छा, जो दाजी हैं उनको पद्म भूषण मिला है, श्री कमलेश पटेल जी को, और उनका 167 कंट्रीज में उनकी ब्रांचेस है। तो उनके साथ हमने एमओयू साइन किया है, खुद ही दाजी के साथ सौभाग्य था कि उनके साथ हमारा एमओयू हुआ। तो मेडिटेशन का जो इम्पैक्ट, मेडिटेशन इज नॉट ए स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटी, यस सर, लेट मी क्लैरिफाई। यस यस एब्सोल्युटली, तो मेडिटेशन का जो पर्पज है वही है कि जो 60,000 से बहुत सारा पर्पज है, लेकिन बेसिक पर्पज अगर मैं बताऊं कि टू गिव रेस्ट टू योर हाइपर एक्टिव माइंड एंड ब्रिंग मोर प्रेजेंट इन योर लाइफ, राइट, एंड प्लस ट्राई टू अंडरस्टैंड हु यू आर। उस पर मैं स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं जाऊंगा, वो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। बट नो दाई, वो जो कहते हैं ना कि अपने को जानो, और अपने को जानो और अपनी शक्ति को पहचानो। तो उसके लिए स्पिरिचुअल कोशेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही शायद आगे भविष्य में बहुत जरूरी होगी। तो हमें दूसरों के प्रति जो एक करुणा का भाव है, दया का भाव नहीं, एम्पैथी, और किस तरह से हम पूरी सोसाइटी में उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनको जरूरत है, वो बहुत जरूरी है। और एक और जो हमारी फैकल्टी और स्टाफ के लिए हम करते हैं, हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ाएं। देखिए, जितना हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ेगा उतने लोग दिल से काम करेंगे। देखिए, कभी भी आपके पेरेंट्स ने नहीं कहा कि दिमाग लगा के काम करो, यही कहा कि दिल लगा के काम करो, और दिल लगा के काम वही होगा जहां पे आप हैप्पीनेस कोशेंट आपका बढ़ा। तो दीज आर आवर विजन कि एक ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बनाए जहां पर एकेडमिक एक्सीलेंस हो। इट शुड बी नोन एज सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस बट विद होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें एसक्यू इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ इट, स्पिरिचुअल कोशेंट। थैंक यू। And so moving on to the last question, what legacy do you hope the students of IIST will carry with them when they graduate? I'm sure they'll have a lot of good memories and a lot of fulfilling times here. So anything in particular? Let us start from the beginning. The motto was IIST, are you ready to evolve? If yes, evolve yourself with IST, IP and IMA. The basic purpose of human life is how you are evolving. Right. And evolve to the best extent possible. अपनी फुल पोटेंशियलिटी तक पहुंचिए। Right. तो पहला तो यही है कि जो लीगेसी जाए, दे शुड इवॉल्व, एंड देन देखो, एक में एक बहुत खूबसूरत शेर है, सीख ले फूलों से गाफिल मुद्दुआए जिंदगी, सीख लें फूलों से गाफिल मुद्दुआए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी है। तो दे शुड आल्सो ग्रो, दे शुड आल्सो इवॉल्व, और जहां भी वो जाएं अपने चारों तरफ लोगों को इवॉल्व करें टू द बेस्ट पॉसिबल वे। जो जीवन सत्य है, जिधर जाना है वहां जाएं। देखिए, अगर आप देखें तो ह्यूमन बीइंग्स के पास कोई फ्रीडम है नहीं, केवल अच्छा काम करने की फ्रीडम है। जहां आपने क्रॉस किया गलत, यू कैन बर्न योर फिंगर्स। दूसरी बात, एक जो उनको हम कल्टीवेट कर रहे हैं कि बहादुर बनो और अनकंफर्टेबल जोन में जाने से मत डरो। क्योंकि मैं कई बार उनको कुछ चीज पोइटिक भी सुना देता हूं कि तुम चलो तो सिर झुका पहाड़ राह छोड़ दें, भी तो हो समुद्र की हिलोल शोर छोड़ दें। इतने बहादुर बनो, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा। तो बी वेरी ब्रेव कभी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सही पाथ पे जाना होगा, राइटस पाथ पे। आपके जो निर्णय हो वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो, ऑब्जेक्टिव हो, और उसमें इंटीग्रिटी हो। तो एक कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी जोर है कि आप एक ऐसे कैरेक्टर को लेके जाइए जो लोगों को इंस्पायर कर सके। इसलिए हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट पर भी बल है। तो जो हमारा टैगलाइन है उसमें ही सब कुछ आ जाता है कि एकेडमिक एक्सीलेंस विद होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो वही लीगेसी लेके जाएं, व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसमें बहुत सारी चीजें हों।
क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है कि वो बहुत खूबसूरत सा एक शेर है कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो अब ये AI की जो हवा आई है, जो हर फील्ड में आई है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बने, क्यूरियोसिटी को हमेशा रखें और नई नई बातें सीखें। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी डायनेमिक वर्ड, तो दे शुड बी रेडी टू चेंज देमसेल्फ। क्योंकि पहले एक कहा जाता था कि एवरी डे इज अ न्यू लाइफ फॉर अ वाइज मैन, और अब मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, एवरी मोमेंट इज अ न्यू लाइफ फॉर अ वाइज मैन। तो डेली आप सीखते हैं और बी रेडी फॉर दैट एंड बी रेडी फॉर इंडस्ट्री 5.0, जहाँ पे पर्सनलाइज्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर इंटरेक्शन विद रोबोट्स जो AI पावर्ड होंगे उनके साथ आपको काम करना आना चाहिए। तो यही लीगेसी लेके वो जाएं, जिसमें इंटीग्रिटी भी हो, ऑनेस्टी भी हो और एक कमिटमेंट भी हो। देखिए बिना कमिटमेंट के कुछ नहीं हो सकता। I think they're giving back to society. They're giving back to society. आपने जो यहाँ पे 4 years में whatever you've gained so far. We are trying our best and they are cooperating. हमारे बच्चों का उसके लिए हमने इंटरेक्शन इतना रखा है कि कभी उनकी देखिए गलतियां हो सकती हैं, that is immaterial. Right. लेकिन उससे वो आगे बढ़े, और जो कभी भी अगर फ्रस्ट्रेशन आता है, डिसअपॉइंटमेंट आता है, उससे डरे नहीं, क्योंकि वो हर एक की लाइफ में आता है। उसको ओवरकम करना उन्हें सीखना होगा। यही लीगेसी लेके जाए। थैंक यू। Thank you, sir, and thank you so much for sharing such valuable insights. We've seen today that education is more than just marks. It's about building confidence, making a difference, and it helping students grow into the best version of themselves. And I think at IIST, it's clear that students are not just judged by their marks, but they are encouraged to write their own stories through strong academics, through happiness quotient programs, practical learning, skill building, and real-world exposure. And sir, it's very heartening to know that IIST is clearly working towards building not just engineers but confident individuals who are ready to take on the world. Not and only the engineers, challenges. pharmacists also, and with MBA also. We are having 3 colleges. 3 colleges, right. Sorry for that. And people who are, so I would say professionals Yeah. who are ready to take on the challenges of the real world. So just one last thing, I think sir, any message to students or parents out there, because जैसे कि हमारा topic है turning scores into stories, so I think it's very important that we should encourage the person and not just the percentage. So anything on that front that ये जो स्टोरी वर्ड है ना, ये बड़ा रखा गया है। क्या आप उसी फिल्म के, क्या आप अपनी फिल्म को चेंज नहीं करना चाहते? अगर आपकी फिल्म को अपने को चेंज करना है तो आपको बहादुर होना पड़ेगा। यू हैव टू राइट योर ओन स्क्रिप्ट। आप अपनी स्टोरी खुद लिखिए और अपने सपनों को, कोई किसी का हक ही नहीं बनता जो आपसे कह सके कि दिस इज योर बाउंड्री, और आप ऐसा नहीं कर सकते। यू पिक अप योर ओन बाउंड्रीज, यू राइट योर ओन स्टोरीज एंड स्टोरीज ऑफ, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने को बढ़ाएं और एम्पावर करें और पैशन और परसिवरेंस को ना छोड़ें, क्योंकि आपका एक ऐसे सपने आए जो आपको सोने ना दें। तो अपने ऊपर वर्क करिए। आपकी लड़ाई केवल अपने आप से है। बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप अपने ही शत्रु सबसे बड़े हैं, तो उसी अपनी कमजोरियों पर हम सबको विजय पानी है, मुझको भी, हम सबको, और वही सूत्र है। क्योंकि जो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। I resides in heart. When God Himself is saying that I am residing in heart, then why you are feeling yourself weak? Right. If you are feeling yourself weak, it means that you are insulting God, which is inside you. तो अपने अंदर के परमात्मा को पहचानिए और उसकी उतनी ऊंचाइयों तक बढ़िए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। Thank you. Thank you, sir. With that, we conclude the session. Thank you so much, everyone. Right. Thank you.